देखिए, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र हित में एक बात कही कि रेवड़ी कल्चर अपनाने से देश पर नुकसान और दुष्प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने किसी प्रदेश का या किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, परंतु ऐसा लगता है कि चोर की मूंछ में तिनका ज़रूर है और हो सकता है कि उड़ता हुआ तीर पकड़ने की आदत उसी को होती है जिसकी अंतरात्मा में चोट पड़ती है। आज जब केजरीवाल जी ने ये तीर पकड़ा ही है तो सवाल उनसे ये है कि दिल्ली मॉडल के नाम पर एक ABCDEF मॉडल शुरू है इस पूरे प्रदेश में। ए फॉर एडवर्टाइजिंग, मतलब 4200% विज्ञापन पर खर्च बढ़ाया गया है। बी फॉर ब्लेम गेम, बिना कोई काम करे अपनी नाकामी का ठीकरा किसी और पर ब्लेम करना। सी फॉर करप्शन, करप्शन के सारे कंपटीशन में अव्वल आना। हेल्थ मिनिस्टर पंजाब का हो या दिल्ली का हो, दोनों हवालात मिनिस्टर बन गए हैं। डी फॉर डाइवर्शन, कोई सवाल का जवाब नहीं देना, डाइवर्ट करना। ई फॉर इवेजन, जब सवाल पूछे जाए तो इवेड करना। एंड एफ फॉर फ्रीबी फर्स्ट। और हमने देखा है ये फ्रीबी फर्स्ट अगल बगल के देशों में भी किस प्रकार का प्रभाव वहाँ की अर्थव्यवस्था पर लाता है। कुछ लोग कहते हैं मुफ्त की शिक्षा दे रहे हैं। पिछले 7-8 वर्षों में तो एक नया स्कूल नहीं खोला है दिल्ली में, 31 स्कूल बंद किए गए हैं। 800 से ज़्यादा स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, तो कैसी मुफ्त की शिक्षा दी जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि मुफ्त का पानी दे रहे हैं, गंदा पानी रोज़ पहुंच रहा है। टैंकर माफिया का काम चरम पर है। जब सूखा और गर्मी पड़ती है तो जल सुखाव होता है, जब बारिश पड़ती है तो जल भराव पड़ता है। तो घर घर तक पानी पहुंचा है, पर वो तो जल भराव का पानी पहुंचा है। कुछ लोग कहते हैं कि फ्री बस की सवारी दे रहे हैं। DTC की 11,000 बसों का दावा करने वाले लोग, आज DTC की बसेस की संख्या कम हुई है तो कैसे फ्री बस की सवारी दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम मुफ्त खाना दे रहे हैं, पर आज तक 10 लाख लोगों को दिल्ली में राशन कार्ड नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जो फ्री देने की बात भी चल रही है, केजरीवाल जी ने केवल फ्री के झूठे वादे दिए हैं, फ्री के आरोप लगाए हैं, फ्री का एयर पोल्यूशन दिया है और दिल्ली की जनता को फ्री के विज्ञापन दिए हैं। दूसरा सवाल। Today, the Prime Minister, while speaking on a larger issue of national interest, spoke about how freebie culture or revdi culture can be harmful for nations. He did not speak about any party or about any state, but unfortunately, those who have a guilty conscience, and in Hindi it is said, "Chor ki moonch mein tinka," those people have reacted to the comments made by the Prime Minister in the larger national interest. Today, we are seeing how countries even around us have failed because of this freebie first culture. And the fact that Mr. Kejriwal has reacted in the manner he has somehow betrays that he is guilty of doing the same. And therefore, he reacted immediately. And since he has, he must be informed that his so-called Delhi model is actually an ABCDEF model. A for advertising, 4,200% increase in the advertising budget of Delhi government in the few years that he has been in power. B for blame game, blaming everything on the center for your own failures. C for corruption, the manner of corruption that was done in Punjab or in Delhi. Both health ministers have become Hawalat ministers. D for diverting the issues. E for evading any real questions. And F for freebie first culture. And that has been seen. The manner in which Kejriwal ji says that he's giving free education, but the reality is that schools have shut down in Delhi. In fact, instead of opening new schools in the last 7-8 years, 31 schools have shut down. 800 plus schools don't have principals. He says I give free electricity, but instead of giving free electricity, 20,000 plus crore rupees has been taken from Delhi's people in the name of fixed charges. Even now there has been an increase of 4% in the PPA cost. So there is no free electricity. He talks about free water, but there is no free water. In fact, it is polluted and dirty water that is reaching the households. During the summer, there is Jal Sukhav, and during the rainy season, there is Jal Bharav on every road. And the only water that is reaching is the water logging, and the water from that water logging that is reaching people's houses. He talks about ration, but there is no ration card that has been given to 10 lakh people in Delhi in the last few years. He talks about free bus savari, free bus ride for women, but instead of getting 11,000 DTC buses, the number of DTC buses have actually reduced. So only thing that we have been getting in Delhi is free promises, fake promises,
and free advertisements. सर, गुजरात में जो दंगे हुए थे उसमें आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें ये बात सामने आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से पैसा दिया गया था तीस्ता को छवि खराब करने के लिए। जो आज एसआईटी के माध्यम से कोर्ट के समक्ष खुलासा हुआ है उससे एक बात तय है कि कांग्रेस और सोनिया गांधी का था मुख्य किरदार, अहमद पटेल थे सूत्रधार और तीस्ता सेतलवाद और उनकी कंपनी थी कलाकार। जिस प्रकार से एक 4D मॉडल 2G ने चलाया, ये 4D मॉडल था डिस्टेबलाइज गुजरात गवर्नमेंट, ट्राई टू क्रिएट a situation to dismiss गुजरात गवर्नमेंट, उसके बाद था डिवाइड पीपल ऑफ गुजरात हिंदू मुस्लिम के नाम पर एंड डिफेम पीपल ऑफ गुजरात इन द नेम ऑफ 2002 राइट्स। ये 4D का मॉडल 2G राहुल जी और सोनिया जी ने चलाया और उसमें मोहरा बनकर काम किया अहमद पटेल जी ने और तीस्ता सेतलवाद को एक हथियार बनाकर, और उनको किस प्रकार से पैसे दिए गए, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं, ये पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन था। किस प्रकार से एक पॉलिटिकल एजेंडा चलाया गया प्रोपेगेंडा का, तो ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन था। किस प्रकार से एक प्रायोजित इंटरेस्ट लिटिगेशन करके एक कुटीर उद्योग चलाया गया हेट प्रोपेगेंडा और झूठ का गुजरात को बदनाम करने के लिए। और केवल एसआईटी ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को जाकिया जाफरी के मामले में पिटीशन को खारिज करते समय माना है कि 16 वर्षों तक पॉट को बॉइलिंग रखा गया ताकि इस मामले को पॉलिटिसाइज और सेंसेशनलाइज किया जा सके। कैसे एक तिरकुट ने एक 3 अंगों के एक महागठबंधन ने, एनजीओ जिसमें कुछ पॉलिटिकल दल और कुछ मीडिया के लोग थे, इन्होंने मिलकर किस प्रकार से 2002 के नाम पर गुजरात के लोगों के खिलाफ, गुजरात के खिलाफ उसकी छवि को धूमिल करने के लिए साजिश रची। किस प्रकार से ट्यूटर किया गया विटनेसेस को, और ये सारी की सारी चीज़ें क्यों की जा रही थी? क्योंकि इसमें कुछ लोगों का आर्थिक लाभ किया जा रहा था, कुछ लोगों का राजनीतिक लाभ किया जा रहा था, कुछ लोग राज्यसभा चाहते थे, कुछ लोगों को पद्मश्री दिया गया। तो ये पूरा का पूरा जो साजिश है आज उसका भांडाफोड़ हुआ है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि क्या ये 4D साजिश के पीछे 2G मतलब सोनिया जी और राहुल जी तीस्ता सेतलवाद के जरिए नहीं थे क्या? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।